नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। यूएनजीए में अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी का भाषण होना है। दुनिया के सबसे बड़े मंच से जब पीएम मोदी बोलेंगे तब पूरी दुनिया उनको सुनेगी। पीएम मोदी के भाषण पर सबकी नजर है, लेकिन इसी यूएन के मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में किया। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इमरान खान झूठ पर झूठ लगातार बोलते गए। इमरान खान ने फिर कश्मीर का राग अलापा, झूठ पर झूठ बोला। इमरान खान ने आतंकवाद का खुलकर समर्थन किया। अलगाववादी नेता सैयद शाह गिलानी को शहीद बताया। आतंकवाद की पैरवी की। तालिबान का खुलकर समर्थन किया। लेकिन इमरान का कश्मीर पर खेला गया दांव उल्टा पड़ गया। उसी मंच से इमरान को भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया। इमरान खान को यूएन में स्थायी समिति की पहली सचिव स्नेहा दुबे ने करारा जवाब दिया। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मंच का पाकिस्तान ने हमेशा गलत इस्तेमाल किया। पहले सुनाते हैं आपको इमरान खान ने कश्मीर पर कितना झूठ बोला और उनको क्या जवाब मिला। A series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. It has jailed senior Kashmiri leadership, imposed a clampdown on media and internet, violently suppressed peaceful protest, abducted 13,000 young Kashmiris and tortured hundreds of them. It has extrajudicially killed hundreds of innocent Kashmiris in fake encounters and imposed collective punishments by destroying entire neighborhoods and villages. We had unveiled a detailed dossier on gross and systematic violations of human rights by the Indian security forces in occupied Jammu and Kashmir. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory and transform it from a Muslim majority into a Muslim minority. Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. The resolutions clearly prescribe that the final disposition of the disputed territory should be decided by its people through a free and impartial plebiscite held under the UN auspices. India's action in occupied Jammu and Kashmir also violate international human rights and humanitarian laws, including the 4th Geneva Convention. Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this August forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. It is also essential to prevent another conflict between Pakistan and India. India's military buildup, development of advanced nuclear weapons, and acquisition of destabilizing conventional capabilities can erode mutual deterrence between the two countries. Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir
and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ सुशांत सरीन जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और पाकिस्तान से ब्रिगेडियर हैरिस नवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। नवाज साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तानी आवाम अपने वजीर आजम से सवाल करती है कि वैश्विक प्लेटफॉर्म पर जाकर इतना झूठ बोलने का मादा वो कहां से लाते हैं? Can I ask one thing? Haven't you abrogated 370A and 35A? Aren't you changing the demography of Jammu and Kashmir, occupied Kashmir? Aren't you blinding the young and old? नवाज साहब, अपनी बात आप रखें उससे पहले दरख्वास्त मैं आपसे कर दूं। सर, ये हिंदी चैनल है, हिंदी शो है, ज्यादा व्यूअरशिप आपको हिंदी में देख रही है जी। देखिए, उसमें मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, आप सबको पता है कि क्या आपने 35A और 370 का एब्रोगेट किया। नंबर 2, आप वहाँ पर जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, वहाँ पर औरतों बच्चों बूढ़ों को पैलेट गन से करते हैं, वो भी आपको मालूम है। नंबर 3, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करें, मुस्लिम मेजॉरिटी से हिंदुओं को लाके बात करके मुस्लिम माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप यूथ को 13-14 हजार यूथ को आपने अरेस्ट किया हुआ है। अली जलानी की मैयत को जिस तरीके से आपने उनकी लबासी से खींचा और जाके एक अननोन जगह पे आपने बरी कर दिया, क्या ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आपकी ह्यूमन राइट्स हैं? तो ऐसे इससे कोई डाउट नहीं है। प्राइम पाकिस्तान ने बिल्कुल एक बात हकीकत बताई है। और उसके साथ मैं आपको करेक्ट कर दूं सर, जो 35 और 370 का राग लगातार पाकिस्तान अलापता रहता है, भारतीय संविधान का एक अस्थायी अनुच्छेद था। अस्थायी का मतलब समझते हैं सर? वो 72 साल रहा, उसको हटा दिया गया। ये हमारा अपना संविधान है। अब ये भारत का निजी मामला है कि कैसे वो चीजें करता है। और उसके बाद 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद अगर पाकिस्तानी अवाम के आपने चेहरे देखे होंगे तो खुशी से वो चेहरे खिले हुए थे। गिलानी साहब के अंतिम संस्कार की आप लोगों ने बात की तो कोविड का वक्त उस वक्त था और उनके परिवार को पूरी इजाजत थी कि वो पूरे विधि विधान के साथ अपने धर्म सम्मत तरीकों से उनकी अंतिम संस्कार कर सकें। इस बारे में चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे सर। बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार पीएम मोदी के इस पूरे दौरे की कवरेज लगातार कर रहे हैं। सुशांत, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा इमरान खान के यूएनजीए के स्टेटमेंट के बारे में कि आखिर क्या वजह रहती है कि आप एक पहाड़ा तकरीबन पढ़ लेते हैं और हर बार वही आकर दोहरा देते हैं यूएनजी में आकर के, या वैश्विक कोई भी प्लेटफॉर्म मिले? आनंद, देखिए, हम अब न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे अगर आप तस्वीर देख रहे होंगे तो ये न्यूयॉर्क की सुबह है, अगर गोपाल आप दिखाएं, जहां पर हल्की हल्की जो है अब गतिविधियां बढ़ने लगी हैं, क्योंकि यहां पर अभी बस सुबह हुई ही है। तो लोग जो है वो अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ऑफिस दफ्तर काम पर जाना और दूसरी चीज़ों के लिए जाना वो हो रहा है। लेकिन ये सब इनकी दिनचर्या का जैसे हिस्सा है आनंद, वैसे ही पाकिस्तान की दिनचर्या का हिस्सा है झूठ बोलना। तो इमरान खान उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इमरान खान यही कर सकते हैं कि वो बार बार यूएन में जाएं। उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बोलेंगे तो उनको एक्सपोज करेंगे, पाकिस्तान की नीतियों को एक्सपोज करेंगे, पाकिस्तान कैसे आतंकवाद फैला रहा है इसको एक्सपोज करेंगे। वो देख चुके कि कमला हैरिस खुद पाकिस्तान का नाम ले चुकी, वो देख चुके कि जॉइंट स्टेटमेंट में सीमा पार से जो आतंकवाद होता है उसको मिटाने के लिए दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई है। तो ये चीज़ें उनको दिख रही हैं, उनको फीडबैक मिल चुका है कि अब उनकी लड़ाई जो है अपने आतंकवाद को बचाने की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं दुनिया को बचाने की, दुनिया को आतंकवाद से बचाने की, वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आतंकियों और आतंकवाद को बचाने की। वो और मुश्किल होगी। तो उनके पास रास्ता क्या है? अभी आप देखिए, इसी पैनल में हैरिस नवाज बैठे हैं, वो यही कहेंगे कि हम झूठ बोलते हैं, हम आतंकवाद फैलाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन ग्लोबल टेररिस्ट जो मिलते हैं दुनिया भर के, वो पाकिस्तान में मिलते हैं, हमारे नई दिल्ली में तो मिल नहीं रहे। लेकिन अब इनको ट्रेन वैसा किया गया, इनको बोलना ही वही है, यही उनकी तस्वीर है, यही उनकी सच्चाई है, यही उनकी कहानी है, तो वो बोलेंगे। लेकिन आज इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, और उस पर नजर रहेगी। अब से करीब 1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री का भाषण यूएनजीए में होना है, जहां वो जो ये करके आए हैं इमरान खान उसका समेट देंगे सारा। जी सुशांत, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। सुशांत सरीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरीन साहब, मुझे बताइए कि जॉइंट स्टेटमेंट जिसका जिक्र सुशांत सिन्हा ने किया, उसमें 4 अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात, मुंबई अटैक की बात,
टेरर प्रॉक्सीज की बात, और अफगानिस्तान एक टेरर जोन बनता जा रहा है। क्या इन चारों पॉइंट का मेन इशारा सीधा पाकिस्तान की तरफ नहीं होता? अगर वैश्विक पटल पर यह माना जा रहा है दोनों की जॉइंट स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट है, तो फिर पाकिस्तान को झूठ बोलने की जरूरत क्या हो? कम से कम मान तो ले वो जो है। यार कैसे मान ले, मतलब कि वो अब वो झूठ बोलना उनकी फितरत है। और ये आपका जो बेसिक सवाल था ना कि ये जो अब भारत के कश्मीर के राग क्यों बार बार अलापते, देखिए अपने देश के बारे में तो कुछ बोलने को नहीं है। भिखारी बना दिया पाकिस्तान को, भीख। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में ये है कि इनका कर्जा कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया है, उस पे ये शादियाने बजा रहे हैं। तो ये तो इनकी हालत है, दयनीय सी हालत है। बाकी इनकी अपनी मर्जी है। बाकी ये जो झूठ बोल रहे थे ना, झूठ मैं बताता हूं आपको क्या है जी। ये जो अभी जो पाकिस्तानी बोल रहे थे जी, देखिए, इन्होंने बात की सैयद अली गिलानी की। इनके यहाँ सैयद अली गिलानी तो दहशतगर्द था, दहशतगर्दों का समर्थक था। इनके यहाँ पर एक प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। पहले तो उसको फर्जी केस में इन्हीं के बिरादरी ने, जो ये बैठे हुए ब्रिगेडियर साहब, इन्हीं की बिरादरी ने उसको फांसी पे लटकाया और फिर उसको छुप करके उसको दफनाया। उसपे इन्होंने कौन सी पूरे इस्लामिक रिचुअल्स फॉलो किए थे। इनके एक और बहुत बड़े नेता थे अकबर बुख्ती, जिसको इन्होंने कत्लेआम में मारा, ठीक है ना, उसको जाके इन्होंने कोल्ड ब्लड में उसको मारा, उसके भी परिवार को नहीं जाने दिया। ये हमारे को नसीहत देंगे पाकिस्तानी? अच्छा, इन्होंने बात की, इन्होंने पढ़ा, इन्होंने ना तो यूएन रेजोल्यूशन पढ़ा है। अभी ये रट लगा रहे थे यूएन रेजोल्यूशन की। क्या बोलता है यूएन रेजोल्यूशन? कि पहले पाकिस्तान वहां से दफा होगा, उसके बाद भारत पूरे कश्मीर के ऊपर कब्जा करेगा, उसके बाद अगली पड़ाव होगा कि प्लेबिसाइड का। इन्होंने पढ़ा नहीं है। पढ़ा यार, पढ़ के आओ पहले। अनपढ़ आदमी हो, तुम्हारे पीए में कुछ नहीं पढ़ाते। सुन लो, चुप करके। आप जब बोल रहे थे मैं चुप करके सुन रहा था। You will keep quiet and listen to me. I am not your bloody civilian. I am not your bloody civilian. You shut up and listen to me. आप चुप करके सुनिए। अगर बीच में नहीं बोलेंगे आप बीच में नहीं बोलेंगे। घटिया आदमी हो आप। You shut up. Shut up. You also shut up. I don't care about you. You bloody civilian. सुशांत सरी साहब और नवाज साहब सुनिए, बात करूंगा। एक काम करते हैं सर, एक एक करके बात करते हैं। हैरिस नवाज, जब आप बोल रहे थे बाकी मेहमानों ने आपकी बात सुनी सर, आप बाकी लोगों की बातें सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से नवाज साहब काउंटर कर पाएंगे। नहीं है तो यूएन रेजोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। इन्होंने ना कश्मीर के अंदर जो डोमिसाइल लॉ बना है, इन्होंने वो पढ़ा है। वो डोमिसाइल लॉ बिल्कुल वैसा है जैसे भारत के अगले जो 29 प्रदेश हैं उनमें है, और वो बहुत ज्यादा उसमें, इनफैक्ट कश्मीर के डोमिसाइल लॉ में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं बनस्बत बाकी प्रदेशों के डोमिसाइल लॉ में। इनको ये भी नहीं पता, इन्होंने वो भी नहीं पढ़ा। तो ये तो जो जाहिलानापन है इनका वो तो दर्शा देता है। फाइनली 370 और 35 की इन्होंने बात की। या तो ये बोले कि 370 और 35 जो है वो भारत के संविधान को ये मानते हैं, जो कश्मीर पे वो लगा हुआ था उसको ये स्वीकार करते हैं। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती कि एक तरफ यूएन का रट लगाए हुआ है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि 370 आपने क्यों हटाया। सुशांत सरीन साहब, मैं तो एक सिंपल सवाल पूछता हूं। सुशांत सरीन साहब, मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं हैरिस नवाज साहब से कि हैरिस नवाज साहब, मुझे ये बताइए, आप अगर पाकिस्तान इतना पाक है और दुनिया को लगता है कि यही मुल्क है जो कि बेहतर है और कोई तो है ही नहीं, तो हर स्टेटमेंट में, हर जॉइंट स्टेटमेंट में आप लोगों का नाम क्यों आता है? ग्लोबल टेररिस्ट आपके यहाँ ये क्यों है? लोगों को अपनी फौज भेजकर आपके आसपास के इलाकों में क्यों इस तरीके की व्यवस्था जो है आतंक को फैलाने की वो खत्म करनी पड़ती है? क्यों आप क्वाड का हिस्सा नहीं है? आप भी तो इंडो पैसिफिक रीजन में जितनी चीज़ें होती हैं उसको लेकर गंभीर प्लेयर हैं। अगर आपके हिसाब से माने तो आप क्यों नहीं है? आप ऑकस में क्यों नहीं है? आपको कोई क्यों नहीं लेना चाहता? देखें, आपको मैं बताता हूँ ना, वजह ये है कि, और ये क्वाड ग्रुप किसके लिए है? चाइना को सर्कल करने के लिए। इंडो पैसिफिक जो भी बनाया गया ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का और अमेरिका का, किस लिए है? चाइना को सर्कल करने के लिए। पाकिस्तान इज अ फ्रेंड ऑफ चाइना, दैट इज द रीजन कि वो आपको इंक्लूड नहीं किया जाते। और सेकेंड बात ये है कि ये देखें, ये बातें आप पुरानी छोड़ दें। जो आप जुल्म कर रहे हैं वहाँ पर कश्मीर में, किसको नहीं पता? आपने जिस तरीके से औरतों को बैलेट गन के ब्लाइंड करते हैं, क्या आपने किसी हिंदू स्टेट में ऐसे किया है? क्या वहाँ के नौजवानों को आपने उठा के जेल में बंद किया है? क्या वहाँ के आपने डेमोग्राफिक चेंज किया है? ये जो यूरो जोन रेजोल्यूशन है, अगर पाकिस्तान फौज हटाएगा तो इंडिया भी हटाएगा। सिर्फ थोड़ी सी पूरे कश्मीर पर कब्जा नहीं करेगा, वहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स छोड़ेगा और फिर प्लेबिसाइड यूएन चार्टर के अंदर होगा। इसलिए ये आप खुद भी पढ़ा करें। हैरिस नवाज साहब, आप जिनको युवा कह रहे हैं, हैरिस नवाज, आप जिनको युवा कह रहे हैं,
वो हमारे देश का जो कानून है अगर उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो उत्तर प्रदेश में पुलिस के एनकाउंटर में भी ठोके जाएंगे और वो जम्मू कश्मीर में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी होगा। हम आपकी तरह ना आतंकियों को पालते हैं, ना उनको हम जो है वो सिर पर बैठा कर रखते हैं। एसपी सिन्हा साहब, क्या पाकिस्तान डिनायल मोड में रहे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दीजिए इनको डिनायल मोड में, लेकिन प्रधानमंत्री जब आज यूएन में बोलेंगे और कल जो जो बाइडेन से मुलाकात और जॉइंट स्टेटमेंट आया है उससे कितना फर्क पड़ेगा टेररिज्म की लड़ाई पर और पाकिस्तान को और कॉर्नर करने को लेकर? देखिए, विश्व के दो महाप्रमुख महाशक्तिशाली प्रजातांत्रिक देश मिलके जब आतंकवाद को विश्व का सबसे बड़ा विशाल करेंगे, उस रास्ते में ज्वाइंट एफर्ट करेंगे तो पाकिस्तान की नींद तो हराम होगी, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का डीएनए है वो एलडीडी, लाई, डिफीट एंड डिसेप्शन, ये आप पाकिस्तान के किसी प्रवक्ता को कहीं पे देख लीजिए, एलडीडी करते रहेंगे। और मुझे तो अजीब लगता है कि इनको शर्म भी नहीं लगती है इतनी झूठ बोलने में, हर एक चीज का झूठ, यूनाइटेड नेशन का प्लेबिसाइड का झूठ। कई भाग ठीक कहा है कि पहले योग खाली करो, हिंदुस्तान को प्लेबिसाइड की बात करो। ये समझते हैं मुस्लिम कार्ड खेल के मुसलमान को पाकिस्तान के फेवर में कश्मीरी वो ही करेंगे। कानूनी तरीके से महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया हमारे साथ मिले हुए। तुम्हारे साथ कौन सा दस्तेबाजी है बताओ ना? बाय डिस्ट्रिक्ट छल कपट से यदि तुमने पीओ के ले रखा है गैर कानूनी तरीके से, मालिकाना किसका है? मालिकाना हमारा है, मालिकाना तुम्हारा नहीं है, समझा करो। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इनके झूठ का पर्दाफाश, कहा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है ही नहीं जानते, काफी सईद के इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। ये इनकी झूठ जो है शरेआम झूठ चलती रहती है। काफी सईद आतंकवादी यूनाइटेड नेशन किस देश को करवा लेना, यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के वॉच लिस्ट में नहीं है। सिन्हा साहब हमारे साथ कमर चीमा भी जुड़ गए हैं। कमर चीमा, जो सिन्हा साहब सवाल उठा रहे हैं उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। कमर चीमा, आप सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोले। जी देखिए, जनरल सिन्हा ने जो है इंडियन फौज का बंदा जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर ही नहीं सकता, उसकी क्या पोजीशन है सारी सिचुएशन में? आप सुबह से बैठे हुए हैं जनरल सिन्हा रॉ के फील्ड में जो उनको रॉ फीड करती है सुबह दोपहर शाम, ये आके यहाँ पे लोग जो है महीने की कहानियां, तुम अफीम खा के आते हो चीमा, तुमको कोई ज्ञान नहीं है। तुमको प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि तुमको मिर्ची लगती है जब मैं तुम्हारे तथ्य तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, तो भी तुम्हारे पास जवाब नहीं होता, तो मिर्ची तो लगेगी क्योंकि तथ्यहीन हो तुम, बुद्धि नहीं है, बुद्धि विहीन हो। आपको बात करनी नहीं आती जनरल साहब, आप कैसे फौज में जनरल बन गए? तो मैं ये कह रहा था तुम्हें चीमा कि कुछ पहले फैक्ट फिगर्स अपने स्टेट कर लो। तुम्हारा कितना लोन है चीमा? 35.4 ट्रिलियन तुम्हारा कर्ज है। भिखारी देश कटोरी लेके घूमते रहते हो, हमसे भीख मांगो, हम तुमको 2 रुपया दे देंगे, उससे बीड़ी पी लेना। तुम भिखारी देश, अरे भिखारी देश कहाँ कटोरी लेके जाओगे? सब जगह से तो इंसल्ट होता है। प्रेसिडेंट अमेरिका तुम्हारे इमरान खान से बात करना ठीक पसंद किए, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे आज की मैं तो पानी भेज देता हूँ अमेजोन के माध्यम से, नाक डुबो के मर जाओ चीमा, मर जाओ, शर्म नहीं आती? चाइना तुम्हारे औरतों के साथ क्या व्यवहार कर रहा है पता नहीं है? तुम गधे बेच के अपना इनकम जनरेट करते हो, प्राइम मिनिस्टर का घर रेंट पे देते हो, वहाँ इंटरटेनमेंट करवाते हो, तुम कुछ पैसा। सिन्हा साहब, आप जितनी बातें कर रही हैं एसपी सिन्हा साहब, कमल चीमा उनके जवाब नहीं दे पाएंगे। नेटवर्क लो हो गया पाकिस्तान में इस वक्त, उनका नेटवर्क कट रहा है।
आपके जितना स्मूथ नेटवर्क नहीं है भारत के, जितना वहां पर नेटवर्क कट रहा है, सही से आवाज उनकी आ नहीं पा रही है। तो आई कैन रिप्लाई आपके पास भी आ जाऊंगा साहब, नवाज साहब आपके पास भी मैं आ जाऊंगा। पूर्णिमा नाथ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जरा मैं रिएक्शन ले लूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास मैं आ रहा हूं सर। पूर्णिमा जी, मेरा छोटा सा सवाल सिर्फ एक है कि अगर वैश्विक स्तर पर ये तकरीबन हर देश मान चुका है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की फंडिंग करता है, कहीं और से पैसा लगा करके आतंकवादियों का पेट भरता है, तो बार बार अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत क्या है? आप यूएनजे के मंच पर जाना छोड़ दीजिए, कम से कम आपका झूठ बोलना बचेगा। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कश्मीर का मुद्दा है, ये उनका फॉरेन पॉलिसी के पार्ट है। कोई भी आया गया है, वो 70 साल से चल रहा है, पार्ट ऑफ इट। उनको किसी को बिठाना भी नहीं है अगर वो दे आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कश्मीर। कश्मीर इज अ स्पेसिफिक इशू और बचपन से वही सिखाया जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान की पार्ट होगा। अब एक चीज हमें समझना चाहिए कि ये बंद नहीं होने वाला है और पाकिस्तान को लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। ये दे आर वेरी डेंजरस किस्म की एक आइडियोलॉजी एंड सोच लेके चल रहे हैं। तो इंडिया को सतर्क होके काम करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूएन में जाने वाले हैं, ये सब जगह में जाके यही रट्टा मारने वाले हैं। ये बंद नहीं होने वाला है। We have to work our narrative properly. India hasn't done it well पहले से। नंबर 2 ये है कि वो कह रहे थे कि डेमोग्राफी चेंज। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान बना ही क्यों पहले, क्योंकि इंडिया हिंदूज के साथ वो रह नहीं पा रहे थे ना। दैट वाज द प्राइमरी रीजन पाकिस्तान को बनाया गया था। नंबर 2, पाकिस्तान में अभी लेस देन 3% माइनॉरिटीज है। एवरी सिंगल डे रिपोर्ट है 3 minority girls are being picked up and converted and raped and married off to older Muslim men to produce Muslim child. मुझे शर्म आती है एक वुमेन के नाते लाइव टीवी में ऐसी बात करने, but that is the truth and we have to talk about the truth. It as brash as it could be. तो हमें सही बात सही तरीके से सही नैरेटिव में वर्ल्ड स्टेज में लाना बहुत जरूरी है। इंडिया फेल्ड एट लॉन्ग टाइम। हमारे कंट्री, हमारे जगह, हमें कह रहा है हम ऑक्युपाइड है और ये कॉलोनियल लैंग्वेज हैज टू बी एबॉलिश्ड एंड स्ट्रांगली एंड फर्मली। ठीक है पूर्णिमा जी, मैं वापस लौट रहा हूं। सुशांत सर जी, मैं एक पर्सपेक्टिव और समझना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त ये जब अफगानिस्तान में आतंकवाद की बात उठी इस जॉइंट स्टेटमेंट में, तो सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है। पाकिस्तान तालिबान को लगातार आगे एंडोर्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान ही पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं। तालिबान के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे, उनके कहने अनुसार हम कुछ नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान तो तालिबान के पीछे पीछे है और तालिबान पाकिस्तान से आगे आगे चल रहा है। नहीं, ये थोड़ा सा धूल है। पूर्णिमा जी, सवाल मेरा सुशांत शरीन साहब से, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। शरीन साहब, देखिए ये जो इशू है ना, ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट में मत देखिए इसको जी। जो पाकिस्तान है बेसिकली तालिबान का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, खासतौर पर जो हकानी और जो पूर्वी अफगानिस्तान के जो गुट थे तालिबान के, वो तो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं। बेसिकली पाकिस्तान का ही एक औजार है अफगानिस्तान के अंदर जी। तो वो जो है वो पाकिस्तान की लाइन टो करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका तालिबान का ऐसा भी है जिसके साथ पाकिस्तान ने बड़ा दुर्व्यवहार किया था जब ये लोग पाकिस्तान के अंदर थे, और इनकी कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो जब पाकिस्तान हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है अफगानिस्तान में, तो उस समय जो ये वाला गुट है, जो दक्षिण अफगानिस्तान के जो लोग हैं या उत्तर अफगानिस्तान के जो लोग हैं या पश्चिम अफगानिस्तान के भी जो हैं, वो फिर उस पर अपना रिएक्शन देते हैं और वो काफी तीव्र रिएक्शन होता है। अब जैसे कल ही उनके जो एक जनरल हैं तालिबान के, उनने कहा भाई ये इमरान कौन होता है, ये खुद तो कठपुतली है, इसको खुद तो फौजियों ने बिठाया हुआ है, खुद तो ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट करता नहीं है, ये हमको कहां से नसीहत दे रहा है, ये क्यों, कौन होता है हमारे को नसीहत देने वाला। तो फिर ये वाले रिएक्शंस वहां से आते हैं।
तो मेरे ख्याल इसको थोड़ा आप ब्लैक एंड व्हाइट में मत देखिए, इसमें काफी चीजें धूलमूल हो रखी हैं जी। लेकिन जो तालिबान है, देखिए तालिबान का जो बहुत बड़ा मसला है, चाहे वो पूर्व के हों या वो दक्षिण के हों तालिबानी, पाकिस्तान के पिट्ठू हों या थोड़े बहुत आजाद हों, उनका जो प्रॉब्लम हमारा उनके साथ रहेगा वो ये है कि ये लोग जिस तरीके की जो सोच रखते हैं, जिस तरीके की मानसिकता रखते हैं जी, वो हमारे लिए किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती और ना अफगानों के लिए है। और ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है। जी सरवीन साहब, मैं वापस आ रहा हूं। सिन्हा साहब, मुझे जरा बताएं कि असल में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर वो कौन है? वो इमरान खान है, ये पाकिस्तानी सेना में जो 3 सितारा रैंकिंग जनरल है, बलूच कमीशन में, बलूच रेजिमेंट में कमीशनड हैं, जनरल फैज हमीद, उनके हाथ में पूरी कमान है, उन्हीं के दिशा निर्देशों पर बाकी चीजें चल रही हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो एक्चुअल पावर है वो पाकिस्तान आर्मी चीफ के पास है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी ISI चीफ को कंट्रोल करता है। आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा कि कुछ दिन पहले जी एक चिट्ठी एजी ब्रांच ने, एडिशनल जनरल ब्रांच ने, एजी ने इशू किया था और ISI चीफ को बोला था कि तुम यूनिफॉर्म में आओ, तुम्हारे साथ कुछ पूछताछ होगी, क्योंकि तालिबान में जाके ISI चीफ नशा में मुक्त एकदम होशो हवास खो बैठा था। वहां की एक औरत के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था। ये तो हालत है ISI चीफ की कि अफगानिस्तान में जाके, काबुल में जाके वो इस तरह की हरकत करता है और पाकिस्तान आर्मी की एडजुटेंट जनरल उसको चिट्ठी से एक्सप्लेन से यू विल कम इन यूनिफॉर्म टू ऑफिस, एजीज ऑफिस एंड गिव एक्सप्लेनेशन। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की ISI है महत्वपूर्ण, लेकिन वो इशारे पे नाचती है पाकिस्तान आर्मी के। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जुडिशरी तक कंट्रोल करता है। आप जानिए, कमांडर जादव के केस में कमांडर जादव को ट्राई किया आर्मी कोर्ट के द्वारा। अरे क्या जुडिशियल सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है क्या? 2 साल का सनसेट क्लॉज था, क्यों नहीं ये पावर खत्म किया गया? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी समझती है कि वो पूरी ज्ञानी आर्मी है, जुडिशरी भी चला सकती है, सब कुछ कर सकती है, खाली हिंदुस्तान के खिलाफ बैटल में नहीं जीत सकती। जो उसका प्राइमरी रोल है अपने देश को विजय दिलाना, वो नहीं करवाती है। ठीक है सिन्हा साहब, आपके मित्र कंवर चीमा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका नेटवर्क इस वक्त आ चुका है। कंवर चीमा साहब, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इन बातों का? देखिए, जनरल सिन्हा के पास एक रटी रटाई स्टोरी है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में फौज ये कर रही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये कर रहे हैं, क्योंकि तुमको मैं आईना दिखाता हूं, तुमको मैं आईना दिखाता हूं कमर चीमा, वो आपको एक जैसी कहानी सुनाएगा। सिन्हा साहब, कमर चीमा को बोलने नहीं दीजिए सर, उनको अपने नंबर भी तो पुख्ता करने हैं। जनरल को ले लें, वो उनको अपने नंबर भी बनाने हैं सर। कौन से बैटलफील्ड में कोई बैटल जीते हो? यार ये तो पहले भी सुनी है, इसमें तो कोई जान नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि इंडियन जनरल को कैसे जवाब देना है, इंडियन जनरल की ठुकाई कैसे करनी है, ये भी पता है। पैसा इंडियन फौज की ठुकाई कैसे करनी है, ये भी पता है। वो पैसा और ये मैं आपको बता दूं, जल साहब, ठुकाई कैसे करनी है इंडियन फौज की, ये हमें पता है। का क्या भला हुआ? आप इतना डरे हुए चाइना और पाकिस्तान से कि अमेरिका से इत्तेहाद करने चले गए हैं। ये पाकिस्तान और चाइना का खौफ है, जिसने आपको अमेरिका भेज दिया है। उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता है? एसपी सिन्हा साहब, नहीं है एसपी सिन्हा साहब, आपके लोग, मैं दरख्वास्त करूंगा सर, एक बार कंवर चीमा अपनी बात पूरी कर ले कम से कम। और जिस ठुकाई की बात कंवर चीमा कर रहे हैं, 2 बार तो ठुकाई सर हालिया सालों में हो चुकी है ना। कमर चीमा, क्या लेके गया? कमर चीमा बताइए कि 2 बार तो ठुकाई आपकी हालिया हो चुकी है ना, सीमा पार जाके ठोका गया था। ओ भाई, उसी ठुकाई का दर्द बोल रहा है क्या सर? आपके जहाज तो हमने गिराए, कल अभिनंदन को। अच्छा बताइए, चलिए, अच्छा एक काम करते हैं, आप लफाजी का मौका मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं 2-3 नाम गिनाता हूं, बताइए कि वो लोग कौन है। मसूद अजहर कौन है पाकिस्तान के लिए? शर्म तो आती नहीं इंडियन एयर। चीमा साहब, मसूद अजहर कौन है पाकिस्तान के लिए? जब हम किसी इंडियन फौजी का जहाज गिराते हैं, चीमा साहब सुन तो लीजिए, बताइए मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए कौन है? बिठा के वो चलता है। मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए कौन है चीमा साहब, बताइए। जन साहब, मारेंगे ज्यादा और गिनेंगे कम, ये याद रखिएगा। और ये इंडियन फौज को पता है कि जो कश्मीर में आपके साथ हुआ है, में क्या हुआ? कमर चीमा, सवालों का जवाब दीजिए ना कमर चीमा। मुझे बताइए कि सैयद सलाउद्दीन है, मसूद अजहर है, ऐसे 50 नाम है आपके पास, ये लोग कौन है आपके लिए? लाखों कश्मीरी है, लाखों कश्मीरी, जिनके ऊपर आपने 7 लाख फौज बिठाई है। डरपोक फौज, फौज, क्या हुआ? लाखों कश्मीरियों, लहरते कश्मीरियों को दबाने के लिए की हुई है।
कहा गया न्यूक्लियर बम तेरा को जो मासूमों पे गोली चलाती है, 1 लाख कश्मीरी शहीद किया आप लोगों ने। आप लोगों के इस जनरल के ऊपर तुम अपने जवानों का पाकिस्तान आर्मी ने 1999 में बॉडी भी क्लेम नहीं किया, का केस होना चाहिए, बॉडी भी नहीं क्लेम किया। जेनोसाइड का केस जनरल सिन्हा पे होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एसपी सिन्हा साहब, कमर चीमा, आप दोनों के पास मैं लौट रहा हूं। सुशांत सरीन साहब, मुझे एक बात बता दीजिए सर कि क्या लफाजी की पाकिस्तान के अंदर कोई अलग कोचिंग शुरू हुई है क्या? तुम अपने आर्मी के बॉडी कि आप वजीर आलम को पढ़ाएंगे कि आपको झूठ कैसे बोलना है? जो प्रवक्ता आकर के बैठेंगे उनको बताएंगे कि आपको लफाजी कैसे करनी है? सिर्फ बोलते जाना है, मतलब निकले ना निकले उससे मतलब नहीं है। तुम अपने डेड बॉडी भी क्लेम नहीं करते। आ रहा हूं सिन्हा साहब आपके पास में। सुशांत सरीन जी, अब चीमा साहब अगर कोई हकीकत पसंदाना बात करें तो फिर चीमा साहब टीवी पे नहीं आ पाएंगे ना, चीमा साहब को जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो जब चीमा साहब की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखिए बचपन से ही तो एक इनकी मानसिकता ऐसी बनाई जाती है, चाहे इनके पब्लिक स्कूल हो या ये मदरसे हो, एक ही बात है, इनके लिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पर खुद स्टडीज हो रखी हैं कि कैसे पब्लिक स्कूल्स में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, उनके खिलाफ एक नफरत फैलाई जाती है। बचपन से ही इनको सिखाया जाता है, कूट कूट करके भरा जाता है। और ये मैं अपनी मन से नहीं बना रहा, इनकी अपनी स्टडीज हैं जिसमें ये सब कुछ आया है। तो अब वो इमरान खान हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड चले जाए, दिमाग और जहनियत तो इनकी वही रहती है। और जिस तरीके से ये तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, उसी से आपको पता लग जाता है कि ये इनकी सोच क्या है, इनका सोचने का तरीका, इनका काम करने का तरीका क्या है। तो मुझे तो कोई बहुत ज्यादा इनसे ना आशा है, ना कोई अपेक्षा है इन लोगों से कि ये कोई ढंग की बात करेंगे जी। बाकी झूठ बोलना जो है वो सारी दुनिया को टोपी पहना पहना के तो अभी 70-75 साल अपना गुजारा किया है। अभी देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल अभी जनरल साहब भी बता रहे थे, आज की खबर है, कल की पहले खबर थी कि ये पहले इन्होंने दिखाया कि हम चीनियों को दिखाएंगे कि भाई हम लोग इनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हमने इनके साथ सौदे किए हैं उससे तो हम बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। फिर चीनियों ने इनको आंखें दिखाई तो ये दुबक करके बैठ गए। इन्होंने बोला अच्छा जो आप माई बाप जो आप बोलते हो हम वही करेंगे। आज खबर आई है कि शादियाने बजा रहे हैं कि जी हमारे कर्जे थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं, तो उसपे ये शादियाने बजा रहे हैं। तो झूठ बोल बोल के अपना गुजारा चलाते हैं, लोगों को बेवकूफ बना के अपना गुजारा चलाते हैं। फिर जब उल्टी पड़ जाती है बात तो फिर दोबारा से, जैसे इमरान खान ने किया कि जी हम तो विक्टिम है टेररिज्म के। अरे भैया, सारा अफगानिस्तान में 20 साल आपने कत्लो गारत वहां पर करवाई, अपने यहां पर उनको पनाह देकर तालिबान को। अब क्योंकि वहां पर पैसे खत्म हो गए हैं, पैसे की जरूरत है, तो कह रहे हैं कि जो हमने एडवेंचर वहां पर किया था उसको अब आप फंड करिए। हम जीत तो हम गए हैं लेकिन हम तो कंगाल हैं, तो अब आप पैसे दीजिए ताकि वहां पर संभाल सकें हम चीज को जी। ये तो इनकी फितरत है। तो कमर सिंह रेस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं सर इस बात का। कमर सिंह बताइए जरा कि सर 70-72 साल तो निकल गए, चंदा लेते, अब दुनिया कब तक चंदा देगी सर? कुछ तो खुद का करना सीखिए। कभी आप अपने आवाम से चंदा मांगते कि भाई बांध बनाना है, चंदा दे दीजिए, टमाटर खरीदने चंदा दे दीजिए। दरअसल मेरी बात सुने, आपने टैंक बनाया, हमने टैंक बनाया, आपने मिसाइल बनाया, हमने मिसाइल बनाया, आपने एटम बॉम्ब बनाया, हमने एटम बॉम्ब बनाया। दुनिया की नहीं, आप अपनी फिक्र करें। आपकी मंदी सर आपने चंदा दुनिया से मांगा, हम लोगों ने दुनिया को दिया। मेरी बात सुनिए, बुनियादी फर्क समझिए। ओ भाई, ये 4 महीने पहले पापा न्यू गिनी से लेके मार्शल आइलैंड तक दुनिया के हर मुल्क से आपने एड ली है। कोरोना की जो हालत, हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई थी, नरेंद्र मोदी तो 2 मिनट में एक्सपोज हो गए थे। आप किस जहान की बातें करती हैं? दुनिया के किस मुल्क ने आपको एड और नहीं दी? किसी ने ऑक्सीजन, किसी ने मास्क, किसी ने सैनिटाइजर, आपको क्या क्या नहीं मिला 4 महीने में? लोग आपकी सड़कों पे मरते थे और आप अफगानिस्तान साहब उसे कहते हैं दुनिया के साथ बेहतर कूटनीतिक संबंध होना, उसे कहते हैं दुनिया के साथ बेहतर राजनीतिक संबंध होना। ऐसा नहीं होता कि जो बिडर को कोई फोन करे, जो बिडर फोन पर रिस्पॉन्ड करने से मना करते हैं। ये होता है इमरान खान के साथ है। मार्शल आइलैंड से आपको एड मिली, पापा न्यू गिनी ने आपको सैनिटाइजर भेजे। आपको किस दुनिया का किस मुल्क ने आपको एड, चंदा, भीख नहीं भेजी? 4 महीने पहले भीख किसको कहते हो? सैनिटाइजर की भीख नहीं। मैं बताता हूं सर भीख किसको कहता हूं, मैं बताता हूं भीख किसको कहते हैं हम लोग। मैं आपको आंकड़े गिनवाता हूं। अब मैं आपको अभी आंकड़े गिनवाऊंगा कि आपको अमेरिका की तरफ से कब कब कितना कहां मिला। आपसे हिसाब मांगा गया तो कैसा बिल में दुबक गए, वापस से आप माफी मांगने लग गए थे कि सॉरी हमसे गलत खर्च हो गया, दोबारा पैसा दे दो। उसके बाद चीन से फंडिंग मिलना को कैसे शुरू हुई है, मैं ये भी गिनवाता हूं आपको। लेकिन उससे पहले छोटा सा कमेंट में चाहूंगा पूर्णिमा नाथ इस मामले में दे दें। पूर्णिमा जी बताइए जरा कि 70-72 साल तो लगातार चंदे के साथ गुजारा हो गया, अब कब तक चंदा मिलता रहेगा पाकिस्तान को?
आई होप यूनाइटेड स्टेट्स को थोड़ा सा दिखे कि सच्चाई क्या है और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाए। ये मैं बहुत दिन से कह रही हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और मुझे लगता है अभी थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है। मेरा इस एडमिनिस्ट्रेशन में भरोसा बिल्कुल नहीं है, बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में। बाइडेन और हैरिस जो भी कहा है क्वाड के जरिए, आपने ट्रम्प के लिए काम किया, वो इलेक्शन ही हार गया। आप तो चाहते थे ट्रम्प आए। सॉरी सीमा जी, आई एम नॉट अप्रिशिएटिव ऑफ आप मुझे टोके। मैं अपना बात नहीं, मैं आपको टोक नहीं रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। प्लीज अपना बात जब आपका टाइम होगा तब आप करिए, मेरा टाइम मुझे दीजिए प्लीज। थोड़ा सा तो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करिए। मैं बड़ा रिस्पेक्टफुल हूँ, यू आर वेरी सीनियर टू मी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये ख्वाहिशात जो है ना, ये रियलिटी नहीं बनेगी, ये कह रहा हूँ बस। आई एम नॉट डन येट, आई एम नॉट फिनिश्ड येट। तो मेरा बात ये है कि बाइडेन हैरिस जो भी कहे इस क्वाड के जरिया और बायलैटरल के जरिया, बट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्फिल्ट्रेटेड। कश्मीरीज है उसमें इम्पोर्टेंट पोजीशन में है। एक है समीरा फजीली, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में है, और एक है उजरा। मैम, जो आपने जॉइंट स्टेटमेंट की बात की है, मैं माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा आपको। उसी के ऊपर सुशांत सर, मैं वापस आपके पास लौट के आता हूं। वही 4 पॉइंट जो मैंने चर्चा की शुरुआत में भी किए थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात मान ली गई जॉइंट स्टेटमेंट में, यानी कि दोनों देशों की रजामंदी के बाद ही जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार आतंकवाद, पीछे पाकिस्तान का नाम आता है। मुंबई अटैक की बात की जाती है, पाकिस्तान का नाम आता है। टेरर प्रॉक्सीज की बात कीजिए, फिर पाकिस्तान का नाम आता है। अफगानिस्तान एक टेरर जोन बन रहा है, तालिबान की वजह से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। अगर हर कोई ये मानने को तैयार है, हर कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर कैसे हिमाकत होती है आके कहने की हमारे यहाँ कुछ नहीं है बल्कि हम तो खुद पीड़ित हैं? विक्टिम कार्ड कैसे प्ले कर लेता पाकिस्तान? यार वो कैसे कर लेते हैं, ये तो ये चीमा साहब भी बताएंगे कि कैसे ये इस तरीके विश्व के सामने टैलेंट तो है। ये तो बिल्कुल माननी पड़ेगी ये बात। टैलेंट है, झूठ बोलने का टैलेंट है, दुनिया को बेवकूफ बनाने का टैलेंट है, और उसी का खा रहे हैं, उसी का कमाया है, उसी का खा रहे हैं, तो वो तो है। लेकिन मेरे ख्याल दुनिया भी समझ गई है। देखिए, कुछ तो मजबूरियां भी हैं। जैसे आप जॉइंट स्टेटमेंट देख लीजिए, बेशक वो क्वाड की हो या जो बायलैटरल स्टेटमेंट है, और इनफैक्ट अगर आप देखें दोनों जॉइंट स्टेटमेंट्स को, क्वाड की और बायलैटरल जो भारत और अमेरिका के बीच में है, जो आतंकवाद को लेकर के और अफगानिस्तान को लेकर के एक सी फॉर्मुलेशन है। तो यानी कि वो सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया और जहां पर इनका असर और रसूख है, वो सारे के सारे मुल्क शायद इसी लाइन पे हैं। और उसमें बड़ा स्पष्ट तौर से ये बात की गई है कि अभी हमारे जो खास तौर अमेरिका के काफी सारे बाशिंदे जो हैं वो अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हुए हैं। तो एक लिहाज से जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तानी और तालिबान, इनके पास एक छोटा सा लेवरेज है कि जी उसको हम यूज करेंगे इनके खिलाफ। तो शायद इस करके थोड़ी सी अभी नरमी भी है, कोई आपको बहुत ज्यादा सख्ती नजर नहीं आ रही। लेकिन इनका ये जो ख्वाब है कि जी ये पैसे आ जाएंगे, ताकि पैसे आ जाएंगे तो हमारी दोबारा से दुबई लग जाएगी, तो दुबई शुबई तो नहीं इनकी लगनी, और पैसे इनको खुद खर्च करने पड़ेंगे जो इनके पास है नहीं। हाँ। चीन भी नहीं खर्च करने को तैयार। चीन के भी अगर आप देखें तो बड़ा साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि वो कोई जिस तरीके से अमेरिका या पश्चिमी देश पैसे देते थे उन्होंने भी नहीं देने। तो इनके लिए मुसीबत तो है। बाकी वो 0 + 0 + 0 = 0 वाले अगर फॉर्मूला पे चल रहे हैं तो इनकी मर्जी है, लेकिन ना तो रूस वहां पर पैसे खर्च करेगा, उनके पास भी नहीं है, ना चीन के पास है, इनके पास तो वैसे ही ये कटोरा लेके घूमते हैं दुनिया भर में। तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होने वाली है कि वहां पर चलाएगा कौन, जो कारोबार है वहां पर वो कौन चलाएगा, क्योंकि जो उस रियासत को पैसा चाहिए वो तो कोई देने को तैयार नहीं है। और ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसी वो बात होगी तो वो सारा का सारा पलायन इनकी तरफ होगा, और वो जो लूट गजोट का बाजार है वो इनकी तरफ गर्म होगा। तो उसपे इनका खौफ ठीक है सर। कमर चीमा और एसपी सिन्हा साहब दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं। सिन्हा साहब आपके पास में हूं, उससे पहले कमर चीमा का रिएक्शन लेता हूं। कमर चीमा साहब, बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर, ये तो भूखे पेट तो भजन नहीं होता, आपको तो देश चलाना पड़ेगा। मैं बता देता हूं, देखिए पिछले 20 साल में भारत ने ब्लाइंडली अमेरिका को फॉलो किया। अरे मुझे समझ नहीं आता सर, मैं पाकिस्तान की बातें करता हूं, भारत की बातें शुरू कर देते हैं। बात सुन लें,
बात सुने ऐसे मजा सर नहीं बात आएगा, तो फिर मैं भी पाकिस्तान की हो रही है ना, पहले पाकिस्तान के बारे में बता दीजिए। अच्छा मेरी अच्छा, बात कितना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर बता दीजिए। सुने बात तो सुने ना, बात सुने, let me finish my argument। 45.470 ऐसे ट्रिलियन, फिर मैं भी किसी को नहीं बोलने दूंगा। 45.470 ट्रिलियन। नहीं सिन्हा साहब, कमर चिमा की बात सुन लीजिए सर, दुनिया में वैसी कोई नहीं सुन रहा, कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे तो सुन लीजिए As on उनकी। 31st March 2021, 45.470 ट्रिलियन कर्ज ऐसे है। मजा नहीं आएगा, ये फकीर ऐसे मजा देश नहीं आएगा। जिसका ईयरली इनकम पिछले है 20 साल में $420। आपने अमेरिका की अरे बातें कैसे सुनी कर्ज लौटाओगे, और अफगानिस्तान ये तो में बता एम्बेसी दो। बंद करवा ली। 45.470 ट्रिलियन आप चाइना में भी कर्ज अपनी कैसे एम्बेसी बंद लौटाओगे? करवाएंगे। अरे ये कहां मैं कहां से आपको भीख बता दूं, लोगे? हमें पता अरे है मुझे अमेरिका एक्शन से प्लान कैसे बताओ, डील करना है। कैसे लौटाओगे आप तो अभी बने हैं अमेरिका के 45.470 छल्ला में ट्रिलियन? और कहते खाली ये लोन लेते है रहोगे, कि भाईजान लौटाओगे आए कब? हमें बचाए चीन से, बॉर्डर पोर्ट, आए हमें बॉर्डर चीन से पोर्ट तुमने बचाए, कर दिया गिरवी, आए हमें इंडो बॉर्डर पैसिफिक पोर्ट में कर मदद दिया करें। गिरवी। लेकिन एक आप बात सुन लें, पाकिस्तान के कितने प्रोविंस करोगे आपकी गिरवी? एम्बेसी चीन में ये अमेरिका बता दो बंद करवा कर रहेगा और आपके फौजियों को मार भी पड़ेगी। पहले आपके फौजियों को मार पड़ी चाइना के नाम, एलएसी पे मार पड़ी ना आपके लिखोगे फौजियों चाइना को। के नाम? आप चले गए अरे मुझे वाशिंगटन, बता दो चीमा, आप फ्रांस चले गए, आप इस्राइल चले गए ड्रोन लेने। एसपी सिन्हा साहब, आप लगातार बोलते रहेंगे, कमर चिमा जवाब दे नहीं पाएंगे, पहले एक बार वो जवाब दे दे। कमर चिमा देखिए, सीधा सा सवाल है, आंकड़ों का सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि एक ज़हीन आदमी, आप पढ़े लिखे आदमी, आंकड़े आपके पास होंगे। कितना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर? मैं बताऊं, दुनिया के किस मुल्क के ऊपर कर्जा नहीं है? अरे अमेरिका सर, के ऊपर फिर वही बात, $1 ट्रिलियन का कर्जा मैं है। आपसे पूछ रहा हूं ये सर, कौन सी पाकिस्तान बात के कर रहे ऊपर हैं? कितना आपके कर्जा ऊपर है? कोई कर्जा नहीं है क्या? आपके मुल्क के ऊपर कोई कर्जा नहीं है? मुझे बताएं सर, मैं मुझे बता सकता है? अब मैं दुनिया के कि हर भारत के ऊपर हर क्यों? देश का आपसे हिसाब आपके तो ऊपर लूंगा कितना नहीं। कर्जा है? आप पाकिस्तान की क्या बात करते हैं ना बातें सर? हो? कर्जा कर्जा कर्जा। चीमा साहब, आप पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान के बाशिंदे हैं ना? सो व्हाट? कर्जे पे चल रहा है अमेरिका। अरे सर, आप पाकिस्तान के बाशिंदे हैं कि नहीं है? आप पाकिस्तान का पक्ष रखते हैं ना? कर्जे लेते हैं, ये बात तो स्वीकारेंगे। कुछ जुर्म है? अब मुझे बताइए सर कि कितना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर? हम लेते हैं कर्जे, लेंगे, आइंदा चुकाएंगे कैसे? अरे चुकाएंगे कैसे? एम्बेसी चीन में बंद होने वाली है। चुकाएंगे कैसे? आपकी एम्बेसी चीन में बंद होने वाली है, आइंदा आप ये हिसाब लगा। चीमा साहब, चुकाएंगे कैसे? करता है, हमें चुकाएंगे कैसे? कर्जा आप ले तो रहे हैं सर। आप फिक्र न करें, जब आपके ऊपर हमला करने की बारी आई, आपके अरे बता दीजिए सर, कम से कम तालिबान ही आपसे इंस्पायर हो जाएगा। बता तो दीजिए कि पैसे चुकाएंगे कैसे? हमारी फौज आपकी फौज की ठुकाई करेगी, जब भी जरूरत पड़ी आपकी फौज की अब ठुकाई फिर आप शुतुरमुर्ग बन जाते हैं सर कि आप रेत में सर डालेंगे, बोलेंगे सब अच्छा है। बता देता हूँ कब? सिन्हा साहब, मैं वापस हो रहा हूं, 2-3 सवाल जब कमर चिमा साहब से मैं ले लूं, उसके बाद मैं आप सवाल पूछ लीजिएगा सर अपने सर। आपकी तो बड़ी ठुकाई हो चुकी होगी हमारी फौज तुम्हारी से। फौज क्या करेगी? चिमा साहब बताइए जरा कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, लश्कर जंगवी, तहरीक तालिबान, ये सारे संगठन कहाँ के हैं? फौज नहीं है, अभिनंदन को घुंघरू पहन के उतारा था हमने, है ना? चीमा अभिनंदन को आतंकवादियों घुंघरू का पहन के समूह उतारा है। था नीचे। तुम्हारा चीफ ऑफ अभिनंदन आर्मी को स्टाफ, कैसे चीफ ऑफ उतारा आर्मी था स्टाफ नहीं जनरल है, जी? चीफ जिहादी है। अभिनंदन को ऊपर से तुम्हारा कैसे जनरल नीचे बाजवा उतारा चीफ था? जिहादी है, घुंघरू पहन के। वो तुम्हारा उस बेचारे ने आतंकी घुंघरू चीफ पहने थे तो आका है। नीचे उतरा। क्योंकि तुम घुंघरू ना बैटलफील्ड पहने में तो कुछ होते, कर ही नहीं सकते, बल्कि उसके वजीर आजम ने घुंघरू घुंघरू पहने पहन हुए के हैं। नाचते हो। अभिनंदन के वजीर आजम ने अरे घुंघरू चीमा, पहने हुए नाचते हैं रहो। और इसीलिए जब भी निचवार है आओगे सारी battlefield में, फौज को, हम तुम्हें और सारी ठोकेंगे। अवाम को निचवार हमें है। तुम्हें शर्म ठोकेंगे। नहीं आती नरेंद्र मोदी को। कमर चिमा साहब, ऐसा है, अभिनंदन की जो बात कर रहे हैं ना, आपकी पूरी फौज की औकात नहीं हुई थी कि उस सिपाही को आप एक खरोंच भी मार देते, क्योंकि पता कि ऐसी की तैसी करने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार था। होश फाख्ता थे सरकार के आपके, और आपको याद हो ना कि आपके मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा था कि अभिनंदन को क्यों छोड़ना पड़ेगा? वो भाषण भूले तो नहीं होंगे ना आप कहो तो मैं आपको पढ़ के सुना दूं दोबारा। अभिनंदन की तो हमने बताइए ना, पूरी फौज की औकात नहीं हुई थी पाकिस्तानी फौज की कि अभिनंदन को आप एक खरोंच मार देते। एक खरोंच लगती तो आपके मुल्क के ऊपर क्या मुसीबत आती, आपको अंदाजा था इस बात का। इसलिए आपके जो मंत्री थे वो आपकी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कह रहे थे कि अभिनंदन को छोड़ दीजिए वरना मुल्क की ऐसी की तैसी हो जाएगी। चूड़ी आपके पास गिफ्ट भेजूं क्या? चूड़ी? एसपी सिन्हा साहब, मुझे ये बताइए, चीमा अपने आर्मी को चूड़ी पहना दो। आपके जो वजीर आजम ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, जो अपनी फौज को आगे करता है हमारे, अरे कितनी बार ठोका? वो पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली डील ही नहीं कर सकता। 93,000 प्रिजनर, कितना? मुझे बताएं, बिपिन रावत को रिश्वत दी, मोदी ने बिपिन रावत को रिश्वत दी पाकिस्तान में हमला करो, मैं तुम्हें सीडीएस बनाऊंगा। ये है आपके टॉप जनरल की इज्जत। आर्मी आपका टॉप जनरल वो है खाली जो करते हो मोदी से रिश्वत लेता है। सर आप दोनों के बीच में इतना प्यार है ना कि एक दूसरे से बात करने के लिए इतने लालायित हैं कि बाकी मेहमानों के पास मैं जा नहीं पा रहा हूं। मैं अब दोनों सज्जनों के पास मैं लौट रहा हूं। मुझे बताइए कि सुशांत सरवीन साहब कि नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं,
यूएनजी में अब से तकरीबन 45 मिनट बाद उनका संबोधन है। क्या ये उम्मीद करें कि उस हर बात की खाल उधड़ेगी जो कल झूठ बोला था इमरान खान ने यूएनजी के अंदर बैठ करके? यार मुझे शक है कि वो मोदी जी अपने आप को उस लेवल पर लेकर के आएंगे। मेरे ख्याल वो बड़ी बातें करेंगे। एक घटिया लोगों की बात क्या करनी है दुनिया भर को। वो हमने अपनी फर्स्ट सेक्रेटरी को या जो सेकंड सेक्रेटरी थी वो उन्होंने अच्छा जवाब दे दिया उसका। अब उससे ज्यादा इनको क्यों अहमियत देनी? दुनिया में कोई अहमियत नहीं दे रहा, हम क्यों दे रहे हैं इनको? मैं तो अब ये भी मानता हूं कि आपको अपने प्रोग्राम में भी इसको इस तरह के लोगों को ला के पता नहीं आप अपने प्रोग्राम को ही खराब करते हैं, नहीं तो बड़ी अच्छी बातचीत हो सकती है हम लोगों हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है ना। लेकिन सुनिए, ऐसे है कि मेरे ख्याल मोदी जी जो बात करेंगे वो बड़े मुद्दों की बात करेंगे। उसमें अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा तो जरूर आएगा जी, लेकिन मेरे ख्याल पाकिस्तान के ऊपर मुझे थोड़ा सा शक है कि वो बात करेंगे। मेरे ख्याल उसको वो बिल्कुल वो इशू ही नहीं है उनका। वो बात करेंगे इंडो पैसिफिक की शायद बात करेंगे, वो क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, वो कोविड की बात करेंगे और जो भारत की उपलब्धियां हैं उसमें वो उसकी बात करेंगे और भारत विश्व के लिए क्या कर सकता है मेरे ख्याल उस पर बात करेंगे जी। इस लेवल इनके लेवल पे उतर के मोदी जी क्यों अपने आप को खराब करें? बात बिल्कुल सही है सर। हालांकि चर्चा में हमारे पास वक्त नहीं है, चर्चा को आगे कंटिन्यू करने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन कमर चीमा साहब 6:30 बजे भारतीय समयानुसार संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएनजी के अंदर, सुनिएगा जरूर और टीवी अपना मत तोड़िएगा।